and may cause neurological damage if the bilirubin level is significantly elevated. Learning objectives. इम्पॉर्टेंट इसमें ये ट्रीटेबल है। अगर हमने इसको ध्यान नहीं दिया, बढ़ने नहीं दिया, तो ये बच्चे के दिमाग में जो बिलिरुबिन गया वो उसको हमेशा के लिए डैमेज कर देगा, तो न्यूरोलॉजिकली बहुत ख़राब सिक्वेंस है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि इमीडिएटली पिकअप करके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना। Learning objectives. After completion of this module, the participant should be able to enumerate the characteristic of physiological jaundice, enumerate the characteristic of pathological jaundice and alert signs, assess the severity of jaundice based on the clinical estimation, institute phototherapy based on recommended guidelines, assess a neonate with a conjugated hyperbilirubinemia. Classical pattern of physiological jaundice. Jaundice that first appears फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और एक पैथोलॉजिकल। जॉन्डिस भी कई बार ट्रीट नहीं करो और कुछ एग्रावेटिंग फैक्टर हो तो वो पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल क्या होता है पहले? Physiological jaundice that first appears between 24 to 72 hours of age. Maximum intensity is seen on 4th to 5th day in term and 7th day in preterm neonates. Does not exceed 15 mg per deciliter. Clinically undetectable after 14 days, no treatment is required, but the baby should be observed closely for signs of worsening jaundice. सो फर्स्ट डे के बाद शुरू हुआ, 24 आवर्स के बाद स्टार्ट होगा और 4th-5th डे तक अच्छा आएगा, 7 डेज से कम होगा और यूजुअली बाय 14th डे डिसअपियर होगा। सो दैट इज़ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, पर इसमें भी ऑब्जर्व करना जरूरी होता है। कई बार इसका भी लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है ना कुछ। यूजली ये डायग्नोसिस इज ऑफ इन रेट्रोस्पेक्ट, जब सब कुछ हो चुका है तो आपको ये देखना है कि ये जो कर्व है इसके पहले नहीं शुरू हो रहा है लेस देन 24 आवर्स में, इसके ऊपर नहीं जा रहा है 15 मिलीग्राम से ऊपर, और 14 दिन के बियॉन्ड नहीं रह रहा है। तो ये जो कर्व है ना इसके ऊपर है ना इसके इधर बाहर है ना इसके इधर बाहर, दैट विल बी फिजियोलॉजिकल। बट यू हैव टू व्हाइल द बेबी इज विद यू हैव टू मॉनिटर कि इट इज़ विद इन दिस, देन वी कॉल इट कि ये फिजियोलॉजिकल। अब पैथोलॉजिकल बताओ क्या है? Pathological jaundice. Clinical jaundice in first 24 hours of life. Total serum bilirubin increasing by more than 5 mg per deciliter per day or 0.5 mg per deciliter per hour. So if the rate of rise is such कि सुबह आपने कराया फिर शाम को कराया है ना, इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, तो 0.5 मिलीग्राम पर आवर बढ़ रहा है या 5 मिलीग्राम जो है कितनी देर में, तो देन यू इट इज़ अलार्मिंग। पहले फिजियोलॉजिकल शुरू हुआ, शुरू भले ही सेकेंड डे हुआ, लेकिन रेट ऑफ राइज ज़्यादा है, तो दैट कैन टर्न इनटू पैथोलॉजिकल। Total serum bilirubin more than 15 mg per deciliter. Conjugated serum bilirubin more than 2 mg per deciliter. Clinical jaundice persisting for more than 2 weeks in full term and more than 3 weeks in preterm neonates. Causes of jaundice. Hyperbilirubinemia in the first week of life is usually of unconjugated indirect variety. Conjugated hyperbilirubinemia direct although occurs less commonly but is always pathological. Causes are usually classified based on time of onset of jaundice. ठीक है, तो 2 तरह के होते हैं जो ट्रीटमेंट, एक होता है कॉन्जुगेटेड और एक अनकॉन्जुगेटेड। जो न्यू बॉर्न में हम देखते हैं वो यूजुअली अनकॉन्जुगेटेड होता है। अनकॉन्जुगेटेड जो होता है या इनडायरेक्ट पोर्शन जो होता है, जो यूजुअली रेड ब्लड सेल्स के हेमोलिसिस के कारण होता है। By a skin-friendly adhesive tape to avoid accidental displacement. Use a punch oximeter to note the saturation and adjust the flow rate so as to maintain the saturation between 91 to 95%. Saturation. Let us now understand the important points which are to be considered by administering oxygen by rope. Set the flow rate at 2 to 3 liters per kg per minute. Observe if bubbles are coming out. The flow rate should not be less than 2 liters per minute. Position the baby's head in the midline and keep a shoulder roll to keep the neck slightly extended. Keep the cleat. Now secure the oxygen tubing inside the hood using adhesive tape. 2
2, 6, 12, 24, 48, 72। तो जिसने बर्थ अटेंड किए वो ये डब्बा बना के पाई में रखेगा। Symptoms of hypoglycemia. There are no specific or characteristic features of hypoglycemia in newborn. The common symptoms are jitteriness, irritability, lethargy, limpness, weak or high-pitched cry, poor feeding, vomiting, tachycardia more than 180 beats per minute, sweating, hypothermia, poor respiratory effort or apnea or tachypnea, dusky color or cyanosis, seizures or coma. तो सारा आ गया, जिटरीनेस से लेके इरिटेबिलिटी से लेके कन्वर्जन। तो इट कैन बी फ्रॉम वन स्पेक्ट्रम टू द अदर ऑफ एनी सिस्टम। सीएनएस में बिल्कुल सुस्त से लेके चिड़चिड़ा से लेके दौरा आने तक। ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम में एपनिक हो सकता है, टेकिपनिक हो सकता है, ज़्यादा सांस चल रही है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। तो देर इज़ नो सिम्टम विच इज़ स्पेसिफिक। यू लुक एट एनी सिस्टम, उस सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम हो सकता है और वो नॉन स्पेसिफिक है। तो ऐसा नहीं है जैसे अडल्ट में अगर जॉन्डिस है तो मतलब लिवर अगर इन्वॉल्व है तो जॉन्डिस होगा, ऐसे ही अगर यूटीआई है तो यूटीआई रिलेटेड स्पेसिफिक सिम्टम्स होंगे। न्यूबॉर्न में किसी भी चीज़ के लिए कोई सिम्टम्स आर नॉट स्पेसिफिक एंड सो ऑल्सो फॉर हाइपोग्लाइसीमिया। सो यू हैव टू सस्पेक्ट। और ये तो सिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया। कुछ होंगे जो बिल्कुल एसिम्टोमेटिक है, जिसको आप उस बेसिस पे सस्पेक्ट करोगे कि ये IUGR है या ये डायबिटिक मदर का बच्चा है एंड ही कुड बी हाइपोग्लाइसीमिक, या ये RH नेगेटिव आइसो इम्यूनाइज्ड बच्चा है, ही कुड बी हाइपोग्लाइसीमिक एंड सो ऑन। तो ही मे नॉट बी सिम्टोमेटिक। सिम्टम्स भी हैं तो नॉन स्पेसिफिक। एंड हिज वाइफ इज SR in pediatrics right in our hospital। अच्छा, फिर मैं एक फीमेल रेजिडेंट को अपने साथ लेके गई उनके प्राइवेट वार्ड में जहाँ पर वही थी। सो वन ब्रेस्ट ही एक्सप्रेस 20 ml मिल्क एंड वी रिक्वायर्ड फॉर द बेबी जो भी कैलकुलेशन के हिसाब से शायद 12, 15, 17 ml जो भी था, यंग बच्चा था, 36 वीक्स कुछ वीक्स था। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ येस्टरडे सेशन विच मैडम टुक। एक्सप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क आता ही नहीं है लोगों को, टेक्निक नहीं आती है, वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, फिर कहते हैं एक भी बूंद दूध नहीं आता। ये तो क्वालिफाइड पीडियाट्रिशियन का हाल है, दोनों के दोनों। तो आप सोचो जो ऑर्थोपेडिशियन, न्यूरोसर्जन, उनके घर में बच्चा पैदा होगा तो वो तो पहले ही वो हो जाएंगे कि दोनों ही आ रहा है। नर्सेस का भी वही हाल है। और जो IT प्रोफेशनल है हमारे हीरो लोग आजकल, मियाँ बीवी दोनों लाखों लाखों में कमा रहे हैं, they are like wow it's not there। so the technique We checked on both. yes they checked everything। So then these are important basic small little things that baby probably had hypoglycemia. His levels may have plummeted from some 110, 120 to 55, so he was manifesting symptoms, and we had a corroborating history that girl could not feed the baby। मैंने बोला यार तूने दूध क्यों नहीं पिलाया? बोला कोई ना कोई आता है, कभी ससुराल वाले कोई आ रहे हैं, कभी इनके दोस्त आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, तो मैं कैसे बच्चे को फीड कराती। जब थोड़ा सा कोशिश भी किया तो बच्चा फीड ले नहीं रहा था। So these things are also important that we have to give her, any mother in the postnatal ward, we have to ensure that she is feeding her baby and she is being given that environment that she feeds the baby. Otherwise hypoglycemia will go undetected। So I was more sure in this baby because मेरे को उसकी preceding history पता थी कि उसने फीड तो कराया ही नहीं। तो कौन सा बच्चा है जो सुबह 11 बजे पैदा होकर और शाम 6 बजे तक इतने स्टोर्स लेके बैठा है क्योंकि काम चलाया जा रहा है। तो नेचुरली एंड फीड दे के एंड देन देयर वाज अ रिस्पॉन्स। ये जहाँ जो बात शुरू हुई कि देयर वाज अ रिस्पॉन्स, थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स वाज देयर कि एक फीड जो कि फीडिंग ट्यूब से दी थी, उसके बाद भी द बेबी इन द नेक्स्ट 2 आवर, नेक्स्ट फीड से पहले द बेबी इम्प्रूव। 5 ml feed structure तो 2 hour day 60 ml feed किया। हाँ, डे 3 पे तो फ्लूइड कितना बनेगा? हाँ, 120।
So on day C, the orders will be as IV fluid being isolated at the end of circle 4 and barabar and express gas field. Everyone is doing that. Third question, you are with him. कर रहे हैं कि नहीं भाई सब लोग? What are the steps of monitoring this baby who is on IV fluids? क्या क्या मॉनिटर कर रहे थे? पीछे देख के पढ़ो सब लोग। Unit output. वेट और Signs of hydration. Immunocyte for externalization, infection. ठीक है, ओके।